Students, let us start the computer lesson 1, the chapter 1 of computer science, data representation. Chapter 1 Data Representation. Number System. When typing letters or words using the computer, these words or letters are represented by the computer as numbers it can understand. While this group of numbers that the computer can understand is called number system, the limited number of numerals in the number system are called digits. The value of these numbers depends on the position they occupy within the number. Number system. When typing letters or words using that computer, these words or letters are represented by the computer as numbers it can understand. मतलब हम लोग जब भी कंप्यूटर में कोई लेटर या वर्ड वगैरह लिखता है, वो लेटर्स एंड वर्ड्स कंप्यूटर में वो नंबर सिस्टम द्वारा वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, क्योंकि वो नंबर्स जो है वही सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आ जाता है. While this group of numbers that the computer can understand is called number system. वो ग्रुप ऑफ नंबर्स जो नंबर्स कंप्यूटर को समझ में आता है उसी को बोलता है कंप्यूटर का नंबर सिस्टम. द लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूमरल्स इन द नंबर सिस्टम आर कॉल्ड डिजिट्स. उसमें कितना न्यूमरल्स है उसी को बोलता है डिजिट्स. एक नंबर सिस्टम में कितना न्यूमरल्स हम लोग यूज़ करता है वो उसको डिजिट बोलता है. The value of these numbers or numerals depends on the position they occupy within the number. वो एक एक न्यूमरल का वैल्यू वो नंबर के अंदर वो न्यूमरल का जो पोजीशन है वो पोजीशन के अनुसार होता है उसका वैल्यू. The number system used for representation of data in the computer is given below. Use of binary numbers in computer data representation. The number system used for the representation of data in the computer system. एक कंप्यूटर सिस्टम में वो नंबर सिस्टम्स यूज़ करता है. कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करने वाला नंबर सिस्टम्स उसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ते हैं. उसमें क्या क्या नंबर सिस्टम है. बाइनरी नंबर सिस्टम, उसका बेस वैल्यू 2 है. उसका मतलब उसमें 2 डिजिट यूज़ करता है, 0 and 1. ऑक्टल नंबर सिस्टम उसका बेस वैल्यू 8 है, मतलब उसमें 0 1 2 3 4 5 6 and 7 इतना नंबर यूज़ करता है. 8 ना इतना डिजिट्स यूज़ करता है, 8 डिजिट्स. डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू 10 है. उसका मतलब उसमें डिजिट्स का क्या है 0 to 9. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू 16 है. उसका मतलब उसमें 0 to 9 भी है. उसके बाद 10 11 12 ये सब के लिए ABCDEF ये सब उसका डिजिट्स है. Use of binary numbers in computer data representation. Computer represents data in 2 signal states. There are 2 voltage levels for these 2 symbols. One is named as the high voltage level and the other is named as low voltage level. 0 and 1 digits respectively represent these low and high voltage levels in a circuit. Thus, 1 and 0 status are equal to the on and off states of an electronic circuit. Any data in the world can be represented on the computer using these 2 digits. Use of binary numbers in computer data representation. कंप्यूटर डाटा रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी नंबर्स का यूज़ क्या है. कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा इन 2 सिग्नल स्टेट्स. कंप्यूटर में डाटा रिप्रेजेंट करता है 2 सिग्नल स्टेट में. देयर आर 2 वोल्टेज लेवल्स फॉर दीज 2 सिंबल्स. वो 2 सिंबल्स के लिए 2 वोल्टेज लेवल है.
One is named as the high voltage level and other is named as low voltage level. एक high voltage level और दूसरा low voltage level. 0 and 1 digits respectively represent these low and high voltage level in a circuit. एक सर्क्यूट में ये दो वोल्टेज लेवल को दिखाने के लिए 0 and 1 यूज करता है. Thus 1 and 0 status are equal to 1 on and off. उसका मतलब 1 means on और 0 means off states. Any data in the world can be represented on the computer using these two digits. ये वर्ल्ड का कोई भी तरह का डाटा ये दो डिजिट्स के यूज़ करके, सिर्फ दो डिजिट यूज़ करके हम लोग को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकता है, ऑन एंड ऑफ. When data stored in secondary storage is sent to the main memory and when it is sent to the central processing unit from there, the data is converted to a binary code. When data stored in the secondary storage, it is sent to the main memory. जब वो डाटा को कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करता है तब उसको दोबारा मेन मेमोरी में भेज देता है. एंड व्हेन इट इज सेंट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ से उसको कंप्यूटर का सीपीयू में भेजेगा एंड द डाटा इज कन्वर्टेड टू बाइनरी कोड. वहाँ पर वो डाटा को बाइनरी कोड में चेंज करता है. उसका पिक्चर देखिए, कॉपीइंग डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी और टू मेन मेमोरी. ये कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी, ये कंप्यूटर का डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क है. हार्ड डिस्क में से डाटा मेन मेमोरी में जाएगा. मेन मेमोरी मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, राम में से 0 and 1 ऑन ऑफ स्टेट में वो डाटा सीपीयू में जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर चिप. Decimal number system. Each number system is made of a unit, number and base/radix. Unit. Unit is a single object. For instance, a mango, a rupee, and a day can be considered as a unit. Number. A number is a symbol which represents a unit or quantity. Base/radix. A number of symbols used in a number system is called the base/radix. The base of any number system is indicated in decimal numbers. Decimal number system. Each number system is made of a unit. Each number system is made of a unit. हर नंबर सिस्टम एक यूनिट से बनाता है और ये नंबर, यूनिट, नंबर एंड ए बेस और रैडिक्स. यूनिट मीन्स यूनिट इज ए सिंगल ऑब्जेक्ट. सिंगल ऑब्जेक्ट को बोलता है यूनिट. जैसे ये मैंगो, ये रुपी, ये डे, है ना, ऑल दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन यूनिट, ए यूनिट. एंड नंबर, ए नंबर इज ए सिंबल विच रिप्रेजेंट ए यूनिट और क्वांटिटी. नंबर मतलब वो एक सिंबल, इट इज़ ए सिंबल, वो एक सिंबल है विच रिप्रेजेंट ए यूनिट और क्वांटिटी. एक यूनिट या एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है नंबर. बेस और रैडिक्स मीन्स ए नंबर ऑफ सिंबल यूज्ड इन द नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस. नंबर ऑफ सिंबल्स मतलब एक नंबर सिस्टम में कितना सिंबल यूज़ करता है उसको बोलता है बेस. जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग दो ही डिजिट यूज़ करते थे, सिर्फ 0 and 1, इसलिए उसका बेस 2 है, उसका बेस 2. जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में उसका बेस 10 है, उसका बेस 10 होने का मतलब इसमें हम लोग 10 डिजिट यूज़ करता है, मतलब द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. द बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज इंडिकेटेड इन डेसिमल नंबर्स. तो कोई भी नंबर सिस्टम हो उसका बेस को दिखाने के लिए हम लोग डेसिमल नंबर यूज़ करता है. To perform calculations using decimal number system, which consists of digits from 0 to 9, normally the base value of decimal numbers are not mentioned, but for the other numbers the base value has to be mentioned. To perform calculation using decimal number system, decimal number system के साथ जो calculation होता है वो perform करने के लिए उसमें एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम में इट कंटेन्स द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होता है? फ्रॉम 0 to 9.
नॉर्मली द बेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स आर नॉट मेंशनड, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम में जब कैलकुलेशन करता है उस समय हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू हम लोग जनरली मेंशन नहीं करता है, बट फॉर द अदर नंबर द बेस वैल्यू हैज़ टू बी मेंशनड। लेकिन दूसरा नंबर सिस्टम के लिए, दूसरा नंबर सिस्टम का जो कैलकुलेशन होता है उसमें हम लोगों को बेस वैल्यू दिखाना पड़ेगा। The digits that are used in decimal number systems are given below. डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करने वाला डिजिट्स ये नीचे वाला टेबल में है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, उसमें डिजिट्स यूज़ करने वाला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इतना डिजिट्स हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करता है। For example, let us consider how the number 25 is formed. Number 25 ये कैसे बनता है? 25 is formed by the addition of 20 and 5. 20 और 5 जोड़ के हम लोग को 25 मिलता है ना। 25 is equal to 20 plus 5। ये 20 को फिर से 2 into 10 20, 5 into 1 5, ओके, एंड 2 into 101 plus 5 into 100. These positional values such as 100, 101, 102, ये सब क्या है? These are called the weighting factor of decimal number. ये दोनों नंबर, इसको क्या बोलता है? डेसिमल नंबर का weighting factor. This number can be shown on a counting frame. ये नंबर हम लोग को एक काउंटिंग फ्रेम में दिखा सकता है, जैसे अबाकस वगैरह में हम लोग को ये दिखा सकता है। इधर देखिए, अबाकस देखिए, अबाकस में वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस। वंस प्लेस उसमें 1, 2, 3, 4, 5 इतना बीट्स है। टेंस प्लेस में 2 बीट्स है, ओके। दिस कैन बी शोन as गिवन बिलो। इसको हम लोग ऐसा ले सकता है 2 into 10 to the power of 1। 2 बीट्स वो 10 to the power of 1 वाला में है, 2 बीट्स वो 10 to the power of 1 वाला में है। 5 into 10 to the power of 0, 5 काम रहे वंस प्लेस में, मतलब 10 to the power of 0 वाला में है। तो 2 into 10 to the power of 1 20, 5 into 10 to the power of 0 5, 10 to the power of 0 means 1, तो 5 into 1 5, 10 to the power of 1 means 10, तो 2 into 10 20, तो 20 और 5 जोड़ के 25 मिलता है। Let us consider one another example how a decimal number is formed। एक डेसिमल नंबर वो कैसे बनता है देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में 302.75, 302.75 ये डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर का वेटेज फैक्टर देखिए कैसे लिखता है। जहाँ पर पॉइंट है उसके पहले वाला 1 प्लेस, फिर 10 प्लेस, फिर 100 प्लेस। पॉइंट के बाद वाला 1/10, 1/100 होता है। तो 3 into 10 to the power of 2 plus 0 into 10 to the power of 1 plus 2 into 10 to the power of 0 plus 7 into 1/10, मतलब 10 to the power of -1 plus 5 into 10 to the power of -2। फिर नेक्स्ट देखिए 3 into 10 to the power of 2 मतलब 100, 3 into 100 300 plus 0 into any number 0 plus 2 into 10 to the power of 0, 10 to the power of 0 means 1, 2 into 1 2 plus 7 into 1/10, 10 to the power of -1 means 1/10, so 7/10 plus 5 into 10 to the power of -2, 10 to the -2 means 1/100, so 5/100। नेक्स्ट स्टेप में 300 plus 0 plus 2 plus 7/10, 0.7 plus 5/100, 0.05। ये पूरा जोड़ेगा तो 302 plus 75 हम लोग को मिलेगा, है ना। इधर देखिएगा सबसे लास्ट 5 into 10 to the power of -2 इक्वल टू 0.05। 5/100 कितना है 0.05। 7 into 10 to the power of
1 मतलब 7/10 means 0.7, then 2 into 10 to the power of 0 means 1, 2 into 1 2, 0 into 10 to the power of 1 0 into 10 0, 3 into 10 to the power of 2 3 into 100 300, ये सारा नंबर जोड़ेगा तो 302.75 वो आंसर हम लोग को मिल जाए। Binary number system. Though we use the decimal number system when we input numbers as data or instructions, the computer represents as data, or when we use the decimal number system when we input numbers as data or instructions, the computer represents these data as 0 and 1. इधर देखिए डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, उसी का इक्वल वाला हेक्साडेसिमल डिजिट देखिए। 0 के लिए 0 1 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9, उसके बाद देख लीजिए 10 के लिए ये, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। अब देखिए द डिजिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर गिवन बिलो। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16, उसमें यूज करने वाला डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। When F the largest number of hexadecimal number system, ये नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट F है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म, उसको बाइनरी फॉर्म में लिख सकता है। इट कैन बी इंडिकेटेड विथ 4 बिट्स। बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए उसके लिए कितना बिट्स चाहिए? 4 बिट्स। दस इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए बाइनरी नंबर विथ 4 बिट्स, इसलिए 4 बिट वाला बाइनरी नंबर यूज करने के बदले में ए सिंगल नंबर हेक्साडेसिमल सिस्टम कैन बी यूज्ड। ये नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक सिंगल नंबर यूज कर सकता है। मतलब बाइनरी नंबर के लिए F के इक्वल वाला बाइनरी नंबर के लिए हम लोग कितना बिट्स चाहिए था? 4 बिट्स चाहिए। लेकिन उसके जगह में अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करेगा तो हम लोग को एक ही डिजिट से वो नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। ये जनरली हम लोग ये नंबर सिस्टम यूज करता है कंप्यूटर का मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर 15E16। 15E उसका बेस 16, 15E बेस 16, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर। 15E बेस 16, उसका वेटिंग फैक्टर देखिए। सबसे लास्ट नंबर का 16⁻�0, उसके बाद 16⁻1, देन 16⁻2। तो 1 का 16⁻2 है, 5 का 16⁻1 है, लास्ट E का 16⁻0 है। तो इसमें 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2, 16⁻3, these values are called weighting factor of hexadecimal number system। इसी को बोलता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का वेटिंग फैक्टर। अभी हम लोग ये पढ़ते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले द कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू नंबर्स ऑफ अदर बेसेस। डेसिमल नंबर को दूसरा बेस वाला नंबर में कन्वर्ट करना है। ऑल द डाटा वी इनपुट इनटू द कंप्यूटर इज टेकन बाय इट एज डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। हम लोग कंप्यूटर में एंटर करने वाला सारा डाटा वो कंप्यूटर लेता है बाइनरी नंबर सिस्टम का फॉर्म में। मतलब 1 and 0 वाला वो नंबर सिस्टम में कंप्यूटर सारा डाटा को इनपुट लेता है। Hence the knowledge to convert a base 10 number to another base is important। इसलिए हम लोग
ह्यूमन बीइंग नॉर्मली यूज़ करने वाला नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है। वो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है। वो बेस 10 वाला नंबर सिस्टम को दूसरा नंबर सिस्टम में वो कैसे कन्वर्ट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, द कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर, सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखते हैं। व्हेन डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड टू ए बाइनरी नंबर, जब एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, द डेसिमल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2 अंटिल द रिमाइंडर इज 0। वो डेसिमल नंबर को डिवाइड करते करते जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 मिलेगा तब तक उसको डिवाइड करते रहना है। एंड द रिमाइंडर ऑफ द डिविजन कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड। हर एक डिविजन के बाद अगर रिमाइंडर आता है तो जो रिमाइंडर आएगा वो उसका राइट साइड में लिखना चाहिए। आफ्टर दैट राइट ऑल द रिमाइंडर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम टू बिल्ड द नंबर। उसके बाद सारा रिमाइंडर बॉटम से लेकर टॉप तक, नीचे से लेकर ऊपर तक एक ऑर्डर में लिखो, वही होता है वो डेसिमल सिस्टम का इक्वल वाला बाइनरी नंबर। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। टू कन्वर्ट द नंबर 1210, 1210 ये एक डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये कैसे करता है हम लोग देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट डिवाइड द नंबर बाई 2, एग्जाम्पल देखते हैं। टू कन्वर्ट द नंबर 12 बेस से 10, द नंबर 12 बेस से 10 उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट डिवाइड द नंबर बाई 2, 12 को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, नंबर 6 मिलेगा, रिमाइंडर 0। इसको फिर से 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला, 3 मिला, रिमाइंडर 0। 3 को फिर से 2 से डिवाइड किया तब 1 मिला, रिमाइंडर 1। 1 को 2 से डिवाइड किया तब 0 मिला, रिमाइंडर 1। अभी ये सारा रिमाइंडर को नीचे से लेकर ऊपर तक लिखना है, 1100। तो 12 के इक्वल वाला बाइनरी नंबर कौन सा है, 1100। 12 उसका बेस 10 इक्वल टू 1100 बेस 2। अभी एक और एग्जाम्पल देखिए, नंबर 46 बेस 10 उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले 46 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 23 मिला, रिमाइंडर 0। 23 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 11 मिला, रिमाइंडर 1। 11 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 5 मिला, रिमाइंडर 1। को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 मिला, रिमाइंडर 1। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 मिला, रिमाइंडर 0। 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0 मिला, रिमाइंडर 1। इसको नीचे से ऊपर तक लिखा 101110। तो 46 बेस 10 डेसिमल नंबर उसका इक्वल वाला बाइनरी नंबर है 101110। ओके, देन नेक्स्ट, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेगा, भी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हियर डिवाइड द गिवन नंबर बाय 8 अंटिल द रिमाइंडर इज 0। डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करते करते जाना है जब तक 0 रिमाइंडर आएगा तब तक। लास्ट रिमाइंडर जब 0 आएगा उस समय तक उसको डिवाइड करते रहना है। सबसे लास्ट सारा रिमाइंडर्स को नीचे से लेकर ऊपर तक लिखना है, वही होगा उसका ऑक्टल नंबर। एग्जाम्पल्स देखिए, टू कन्वर्ट नंबर 158 बेस 10, 158 बेस 10 उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट डिवाइड दिस नंबर बाई 8, 158 को 8 से डिवाइड करो तो कितना बार, 19 बार जाएगा, रिमाइंडर मिला 6। उसको फिर से 8 से 2 बार, रिमाइंडर मिला 3। उसको फिर से 8 से डिवाइड करना है तो 0 बार, रिमाइंडर 2। तो
नीचे से लेकर ऊपर तक लिए 236, तो 158 डेसिमल नंबर बेस 10 वाला नंबर, उसका इक्वल वाला ऑक्टल नंबर है 236 बेस 8 वाला नंबर। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। हियर डिवाइड द नंबर बाय 16, जो डेसिमल नंबर है उसको कितना से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते करते जाइए, जब तक रिमाइंडर 0 मिलेगा तब तक डिवाइड करना है। उसके बाद सारा रिमाइंडर्स को नीचे से लेके ऊपर तक लिखना है, तब उसका वो डेसिमल नंबर का इक्वल वाला हेक्साडेसिमल नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, टू कन्वर्ट द नंबर 38 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल नंबर 38, देन फर्स्टली डिवाइड दिस नंबर बाय 16। सबसे पहले ये 38 को 16 से डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर को लिखना है। फिर देखिए 38 डिवाइडेड बाय 16, तो 2 मिला, रिमाइंडर 6 मिला। 2 को फिर से 16 को डिवाइड करेगा तो 0 मिला, रिमाइंडर 2 मिला। तो नीचे से लेकर ऊपर तक 26 मतलब 26 8 का इक्वल वाला हेक्साडेसिमल नंबर है, कितना है 26। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्ट द नंबर 47 बेस 10, 47 बेस 10, सो ये नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये देखिए नंबर 47 को 16 से डिवाइड किया तो सबसे पहले 2, रिमाइंडर 15, 2 को फिर से 60 से डिवाइड किया तो 0, रिमाइंडर 2, तो 215। हेक्साडेसिमल नंबर में 9 के बाद ABCD आता है, तो 2 उसके लिए 2 ही लिखना है। ये 15 के इक्वल वाला F है, तो 2F, नीचे से ऊपर तक 2F। तो 47 जो डेसिमल नंबर है बेस 10 वाला नंबर, उसका इक्वल वाला हेक्साडेसिमल नंबर यही है 2F, 2F बेस 16, 2F। देन नेक्स्ट, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। इसके पहले हम लोग ये पढ़ा था डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाएगा, डेसिमल टू बाइनरी। अभी हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ये कैसे बनाएगा। एग्जाम्पल देखिए, टू कन्वर्ट द नंबर 1101 बेस 2, 1101 बेस 2, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1101 लास्ट वाला 2⁻0, उसके पहले 2⁻1, उसके पहले 2⁻2, उसके पहले 2⁻3, ये सब उसका वेटिंग फैक्टर है, वो वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0। 1 × 2⁻3 मतलब 8 प्लस 1 × 2⁻2 मतलब 4 प्लस 0 × 2⁻1 मतलब 2 प्लस 0 × 2⁻1 मतलब 2⁻0 मतलब 1। 1 × 8 8 प्लस 4 × 1 4 प्लस 0 × 2 0 प्लस 0 × 1, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है, 1 आना चाहिए, सबसे लास्ट नंबर है 1 है, तो 1 × 1 1, तो 8 + 4 + 1, 8 + 4 + 1 कितना है 13। तो 1101 का इक्वल 1101 बाइनरी नंबर है, उसका इक्वल डेसिमल नंबर कितना है 13, बेस 10 वाला डेसिमल नंबर है 13। देखिए इधर देखिए 1 × 2⁻0, 0 से 0 × 2⁻1, फिर 1 से 1 × 2⁻2, फिर 1 से 1 × 2⁻3। 2⁻0 means 1, 1 × 1 1, 2⁻1 means 2, 2 × 0 0,
2 raised to 2 means 4, 4 into 1 4, 2 raised to 3 means 8, 8 into 1 8। ये सब जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो 1101 बेस 2 वाला नंबर है, उसका इक्वल वाला डेसिमल नंबर हो गया कितना है, 13। अब कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा कैसे, उसको देखते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, एक एग्जाम्पल देखिए, 1275 बेस 8, 1275 बेस 8, ये ऑक्टल नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसका वेटिंग फैक्टर्स, सबसे लास्ट वाला का 8 रेज टू 0, देन 8 रेज टू 1, 8 रेज टू 2, 8 रेज टू 3, इसी तरह से है ऑक्टल नंबर का वेटिंग फैक्टर। तो ये जो डिजिट्स से उसको वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 इंटू 8 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू 8 रेज टू 2 प्लस 7 इंटू 8 रेज टू 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू 0। 8 रेज टू 3 मतलब कितना है, 512। 1 इंटू 512, 512 प्लस 8 का स्क्वायर 64 है, 2 इंटू 64 128 प्लस 8 रेज टू 1 मतलब 8, 7 इंटू 8 56 प्लस 8 रेज टू 0 मतलब 1, 5 इंटू 1 5। ये चार नंबर जोड़ेगा तो 701 मिलेगा। तो 1275 ऑक्टल नंबर बेस 8 वाला, उसका इक्वल वाला डेसिमल नंबर है 701 बेस 10 वाला डेसिमल नंबर। इधर देखिए, सबसे लास्ट डिजिट 5, 5 इंटू 8 रेज टू 0 5, 7 इंटू 8 रेज टू 1 56, 2 इंटू 8 स्क्वायर 128, 1 इंटू 8 का क्यूब 512। ये सब जोड़गा तो कितना मिला, 701 मिला। तो 1275 वो बेस 8 वाला नंबर है, मतलब ऑक्टल नंबर है। ये ऑक्टल नंबर का इक्वल वाला डेसिमल नंबर है 701। अब कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, ये कैसे कन्वर्ट करता है ये देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्ट 329 उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, लास्ट नंबर 9 से एक एक डिजिट का वेटेज फैक्टर लिखा हुआ है। सबसे लास्ट नंबर का 16 रेज टू 0, उसके पहले 16 रेज टू 1, उसके पहले 16 रेज टू 2। तब उसको एक एक डिजिट को अपना वेटेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3 इंटू 16 रेज टू 2 प्लस 2 इंटू 16 रेज टू 1 प्लस 9 इंटू 16 रेज टू 0। 3 इंटू 16 का स्क्वायर 256, 2 इंटू 16 रेज टू 1 16, 9 इंटू 16 रेज टू 0 मतलब 1। 3 इंटू 256 मतलब 768 प्लस 2 इंटू 16 मतलब 32 प्लस 9 इंटू 1 मीन्स 9। ये तीन नंबर जोड़ेगा तो 809 मिलेगा। तो 329 वो जो बेस 16 वाला नंबर है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है, उसका इक्वल वाला डेसिमल नंबर 809। इधर देखिए, 9 इंटू 16 रेज टू 0 9, 2 इंटू 16 रेज टू 1 32, 3 इंटू 16 रेज टू 2 768। टोटल जोड़ेगा तो 809 मिलेगा। तो 329 वो एक बेस 16 वाला हेक्साडेसिमल नंबर है, उसका इक्वल वाला बाइनरी नंबर बेस 10 वाला बाइनरी नंबर हो गया 809। अब to convert number AB2 to a decimal number, एक हेक्साडेसिमल नंबर है AB2, क्योंकि ABCD सब किस में आता है, हेक्साडेसिमल में आता है। तो AB2 एक नंबर है हेक्साडेसिमल, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये कैसे करना है वो देखते हैं।
इधर देखिए AB2 लास्ट डिजिट 2 उसका वेटेज फैक्टर 16⁻0, उसके पहले B उसका 16⁻1, उसके पहले A उसका 16⁻2। एक डिजिट को अपना वेटेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो A इंटू 16⁻2 प्लस B इंटू 16⁻1 प्लस 2 इंटू 16⁻0। ये मतलब 9 के बाद 10 आता है। 9 के बाद ABCD है, 9 के बाद A का बराबर 10। तो 10 इंटू 16⁻2 मतलब 256। B मतलब A के बाद B मतलब 10 के बाद 11 इंटू 16⁻1 प्लस 2 इंटू 16⁻0 मतलब 1। 16⁻1 मतलब 60। ये जोड़ेगा तो 256 इंटू 10 2560 प्लस 11 इंटू 16 176 प्लस 2 इंटू 1 2। ये तीनों जोड़ दिया तो 2738। AB2 वो बेस 16 वाला नंबर है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर, उसका इक्वल वाला बेस 10 वाला डेसिमल नंबर है 2738। इधर भी देखिए 2 से 2 इंटू 16⁻0 इज इक्वल टू 2। 16⁻0 मतलब 1, 2 इंटू 1 2। B से B मतलब 11 है, 11 इंटू 16⁻1 11 इंटू 16 176। A से ये मतलब 10 है, 10 इंटू 16 का स्क्वायर 256 इंटू 10 2560। ये सब जोड़ गया तो 2738। AB2 वो बेस 16 वाला एक डिजिट था, एक नंबर था, उसका मतलब हेक्साडेसिमल वाला नंबर, उसका इक्वल वाला डेसिमल नंबर है 2738।